cells, so two identical daughter cells, is responsible for these type of things like growth and development, repair and healing, and asexual reproduction. This is the different stages that we have already discussed. That how these different stages, right from the prophase to the telophase, how they looks like, right from the telophase. This is we can say here very clearly. These are the anaphase, the projections or the chromatids. They were projecting in different at different angles. So we can say that the anaphase, they were present at the uh, different at the equatorial plate. Then we can say that it is a metaphase stage. And that we have also, these stages we have also discussed when we were discussing about the metaphase stage, right from the true nucleus, the chromatin network is there. Then it just starts the condensation, and after the condensation, the fully condensed chromosomes were formed, and simultaneously the still fibers were formed, which were attached to the kinetochore. And with the help of the attachment of the kinetochore, what happens? The activity of the spindle fiber, they reach to the equatorial plate, and then after a certain time, just you can see here also the metaphase stage, the chromosomes were present at the equatorial plate. Then they started moving towards their respective poles like this. That they were moving started towards their respective poles, and when they reach towards the respective poles, the circulators started the formation. The nuclear envelope were also started to form, and similarly, you can see in the true slide of the mitosis in case of the alien cepa. So, as I also discussed with you people, that uh, right from the interface to the prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Even in case of the prophase, sorry, in case of the interface, it is a preparatory phase, and we have also discussed that it is divided into three different phases, like G1 phase, S phase, and G2 phase. So, what are the different things which were occurring in different phases that we have also discussed? But the whole process, right from the interface or where the simple nucleus is present, where the simple chromatin network or thread-like structures were present, to the telophase stage, where the two complete daughter cells were formed. Every process, every step is regulated. Regulated means कि एक प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तभी दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, और दूसरे प्रोसेस की जरूरत है या नहीं है वो डिपेंड करेगा उसके फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर कि एवरीथिंग इज ओके, तो सिग्नल मिलेगा कि नेक्स्ट आप नेक्स्ट स्टेज पर मूव कर सकते हैं, तब सेल नेक्स्ट स्टेज पर मूव करेगा। कैसे होता है वो बहुत ज्यादा डिटेल, नॉट अप टू द लाइक एमएससी और पीएचडी लेवल का आपको नहीं बताया जाएगा, बट आई विल ट्राई टू कवर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन। There are two types of regulation: positive regulation and there may be a negative regulation. पॉजिटिव रेगुलेशन जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रेगुलेशन मीन्स कि वन स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ जब जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तो उसको पॉजिटिव रेगुलेशन कहेंगे। नेगेटिव रेगुलेशन जब कहेंगे कि जब आगे जाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, सेल को नेक्स्ट स्टेज में जाने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो नेगेटिव रेगुलेशन में जाएगा। एंड नेगेटिव रेगुलेशन में जाने के लिए उसको दो 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 रास्ते मिलेंगे। या तो पॉजिटिव में जाने के लिए उसको अपने आप को रिपेयर करना पड़ेगा, अगर रिपेयर की जरूरत है तो वैसा ही उसको सिग्नल मिलेगा और वो क्या करना शुरू कर देगा अपने आप को
रिपेयर करने के लिए। अगर रेगुलेशन रिपेयर की जरूरत नहीं है या सेल इस स्टेज में है कि रेगुलेट हो ही नहीं सकता है और वो रिपेयर हो ही नहीं सकता है, then the cell is going to die. So these are the two different processes like positive regulation and negative regulation. So first we will discuss about the positive regulation. Why cell cycle regulation is needed. Again, one of the most important um, one of the students facing some problem, I think. Asad, Asad, please switch off your microphone. Okay, thank you. So why the cell cycle is regulation? Why the cell cycle regulation is needed? What is the important of the cell cycle that we have, or we must know that why nature did all these things. So if not control, the cell continuously divide. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं होंगी, जैसे मैंने आपको कहा कि सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ द लीफ। लीफ अगर कंप्लीट हो गई, उसका जो है साइज कंप्लीट हो गया, तो फिर फर्दर वो डिवाइड नहीं करेगा, वहां पर जाके रुक जाएगा। अगर वो कंट्रोल ना हो तो वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहेगा और फिर लीफ का जो प्रॉपर साइज है वो प्रॉपर साइज मेंटेन नहीं होगा और वो पूरी कुछ नया ही स्ट्रक्चर बन जाएगा अगर कंटिन्यूअस डिवीजन ना हो, सॉरी कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा हो। कंटिन्यूअस डिवीजन का जो है, जो आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दी जाती है रेगुलेशन की, वो दी जाती है कैंसर की। कि अगर जो है उसमें यही प्रॉब्लम हो जाती है कि जो सेल्स का डिवीजन है पर्टिकुलर ऑर्गन्स में, वो वन और द अदर रीजन वो कंट्रोल नहीं रहता, कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड करते रहते हैं और वो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट कि कैंसर क्या चीज होती है और क्या प्रॉब्लम हो जाती है एंड हाउ डेडली द डिजीज इज। सो मतलब कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट है सेल का, सेल डिवीजन का, ये हम एक छोटी सी ये वाली एग्जांपल से, कैंसर वाली एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Sir, सिमिलरली इन actually, केस ऑफ द, यस, do plants also suffer from cancer? सॉरी, Do plants also suffer from cancer? yeah, yes, not a cancer, but you have seen that अगर कुछ जगह पर अगर प्लांट की कोई चोट लग जाती है तो एक आपको आउटग्रोथ दिखती है। हालांकि वो उसको आपने एक अदर टर्म देते हैं कि कैलस, कैलस का टर्म उसमें टर्म देते हैं इन केस ऑफ द प्लांट्स। इफ यू हैव सीन कि अगर कहीं प्लांट में कहीं चोट लग गई या कोई किसी इंसेक्ट का या किसी और चीज का अटैक की वजह से अगर कोई इंजरी होती है तो वहां पर एक आउटग्रोथ टाइप की हो जाती है। उसको आप कैंसर तो नहीं कह सकते हैं, बट इन टर्म्स विच इज फाउंड इन द बॉटनी और इन द प्लांट साइंसेज, दैट इज कॉल्ड एज द कैलस, जहां पर कंटिन्यूअस जो है वो सेल्स का डिवीजन होता रहता है। Anyways, so this is simply the example which why the regulation is needed, and it helps in the transition of cells from one phase to the another phase. एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि सेल को वन फेज से दूसरे फेज की तरफ ले जाती है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है जब हम रेगुलेशन की बात करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द फीडबैक मैकेनिज्म, एज आई सेड, जो सेल का फीडबैक मैकेनिज्म होगा उसी के हिसाब से डिफरेंट काम हो रहे होते हैं सेल में। Suppose if the cell is going to divide, then the signal will be given to the G1 phase, where the different kind of enzymes, different kind of proteins, which were used for the uh, replication of the DNA, they all were prepared in G1 phase. So once all the and also the organelles were also become double, the volume is also almost become double of the cell.
So all these things happens in the G1 phase. एंड जीवन फेस में जब ये बन गई, क्योंकि इनकी जरूरत सेकंड फेस में होनी है, जब फीडबैक मैकेनिज्म आएगा तभी ये सब चीजें बनेंगी, एंड देन द सेल विल मूव फ्रॉम वन फेज टू द अनदर फेज। अगर वो वहां से सिग्नल नहीं आएगा कि फर्दर आपको सेल डिवाइड नहीं करना है, तो सेल रिमेन्स इन इंटरफेस। This was the outline diagram which I have shown you during the discussion with the mitosis. Sorry, it's not, because most of the studies which were included in that kind of things, they were from the mitosis. So just you can see the cell growth is there in G1 phase, and then the DNA replication in synthesis phase or the S phase, and in G2 phase or the gap 2 phase, you can see where the preparation of the mitosis occurs. And this whole process, right from here to here, this is called as the interphase. And in this small area, the another part left, which is very much important, and that's called as the cell division, which constitutes the two types of the cell, two parts. One is the karyokinesis right from prophase to metaphase, anaphase, and telophase, and then the cytokinesis. So this is just for the revision for you people, that during the cell division, how all these things they were organized. अभी फिर से मैं यहाँ पर एक बार वर्ड रिपीट कर दूं, जब हम डिस्कस कर रहे थे, अभी बोले तो 2 रुपया मनाए हो, सब जानते हैं घरे जा 2 रुपया पूरी लकड़ी तो सब ढवाए है वो तो अब किया पर अरे they are not at a proper place for the class. They are simply moving here and there, and the number of things can be happening. If they are not interested, why they are coming to this particular class? I don't know. Right from the first day, I am repeating one thing, that we have a lot of syllabus and we have to cover in very short time period. And you people have, if you are not serious, then why you are coming? Why you are wasting your time? Only the students which were sincere, or who want to learn something, or who can discuss something with me, they only can join this particular class. This is very ridiculous. I'm simply preparing my class to discuss all these things with you people. 2 यूनिट का मेरे पास सिलेबस है, और आपकी ऑलरेडी क्लास इतनी लेट हुई है और अभी भी सिंसियर नहीं है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा इतना मसला इम्पोर्टेंट है जो डिस्कस करते कर रहे हैं और घूमते कर रहे हैं, और जेब में डाल लिया मोबाइल, जो प्रोसेस डिस्टर्ब। जब कोई चीज डिस्कस कर रहे होते हैं, सब चीज डिस्टर्ब हो जाती है। अदर स्टूडेंट्स को भी जो सिंसियरली बैठा हुआ है वो सवेरे से, उसको भी जो है प्रॉब्लम होती है। It's simply these people are idiots, and sorry to say. Anyways, let me discuss the our own topic. Sorry for the disturbance. ये पूरा जो है सेल साइकिल, ये हमने आपको डिस्कस करके बता दिया था कि क्या होता है, G1 फेज क्या है, G2 फेज क्या है, S फेज क्या है, और साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस क्या है। सिंपली एक ही वर्ड से हम इसको रिपीट और कर लेते हैं कि ये लॉन्गेस्ट फेज है जीवन का। सिंथेसिस of RNA proteins, synthesis of the RNA होता है, proteins, amino acid, energy rich compound, cell organelles and cell size increase करता है in case of the G1 phase. In case of the S phase, which is one of the most important phase, and that is the step or the stage where the DNA synthesis occurs. DNA का जो है synthesis होती है और DNA के double strands बन जाते हैं। And हाँ, अब यहाँ पर आपने जो है ना, बहुत बहुत हो सकता है कि ये सब चीजें कुछ लेवल तक आपने पढ़ रखी हो, कि यहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल होता है। ट्रैफिक सिग्नल मैंने इसलिए आपको लगाया है कि आप कुछ चीजें समझ सकें, जो है ना, तो इम्पोर्टेंट चीज है। एक यहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल है, दैट मीन्स ट्रैफिक सिग्नल मीन्स कि वहां पर सारी चीजें रेगुलेट हो रही हैं, चेक हो रही हैं।
जब जरूरत है, जिस हिसाब से टाइम टू टाइम आपको एक तरफ का ट्रैफिक निकलेगा, फिर दूसरी तरफ का ट्रैफिक निकलेगा, फिर तीसरी तरफ, पूरा एक चीज एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक वक्त में कौन सा ट्रैफिक किधर को जाएगा। तो सिमिलरली इट इज द केस when the cell is moving from G1 phase to S phase, then there is a checkpoint or there is a traffic signal which is called as the checkpoint. Okay. Similarly, when the cell move from S phase to G2 phase, यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट है और यहाँ पर भी सेल जो है चेक किया जाता है। चेक पोस्ट है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन आवर लेमन लैंग्वेज वी कैन से दैट इट इज अ चेक पोस्ट। यहाँ पर सारी चीजें चेक होंगी, अगर सब चीजें सही हैं तब ही वो सेल आगे बढ़ेगा। अगेन राइट फ्रॉम G2 फेज से जब प्रोफेस में जा रहा होगा तो वहां पर भी एक चेक पॉइंट आपको मिलेगा और वहां पर भी सारी चीजें चेक होंगी। एंड द फोर्थ वन, वो मेटाफेज से और एनाफेज की तरफ जब सेल जा रहा होगा तो वहां पर भी वो चेक होगा कि एवरीथिंग इज ओके। इफ एवरीथिंग इज ओके देन द सेल विल मूव फ्रॉम मेटाफेज टू द एनाफेज। तो ये बहुत मोटी सी चीज है कि ये सारी चीजें आपको बताया जा रहा है कि 4 चेक पॉइंट्स हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 4 चेक पॉइंट ही क्यों है? जब प्रोफेज से मेटाफेज जा रहा है तब क्यों नहीं हो रहा है, या मेटाफेज से एनाफेज जा रहा है तब क्यों नहीं हो रहा है? मेटाफेज से एनाफेज तो है ही है, एनाफेज से टीलोफेज में क्यों चेक पॉइंट क्यों नहीं है, और टीलोफेज से साइटोकाइनेसिस में क्यों नहीं है कोई चेक पॉइंट? तो यहाँ पर द आंसर विल बी कि जो डिफरेंट वर्कर्स ने चेक पॉइंट अभी तक रिपोर्ट किए हैं वो इन 4 जगह ही रिपोर्ट किए हैं। स्टडी जो है वो हुई है, उनमें यही अभी तक पता चला है कि 4 चेक पॉइंट्स हैं। मे बी इसमें ज्यादा भी हों, प्रोफेस से मेटाफेस में भी हों, बट स्टडी हैज नॉट डन yet about that. So that's why whatsoever the information which is included in your course or in your books, on the basis of this, I have prepared this particular presentation or this particular topic like cell cycle regulation. So अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए कि G1 फेज से S फेज में जाने के लिए एक चेक पॉइंट है, S फेज से G2 फेज में जाने के लिए एक चेक पॉइंट है, एंड G2 से प्रोफेज में जाने के लिए एक चेक पॉइंट है, एंड मेटा से एना जाने के लिए एक चेक पॉइंट है। यहाँ पर सब चीजें चेक होंगी। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी जरूरत है सेल डिवीजन एंड ऑल्सो द डीएनए सिंथेसिस। अगर ये सारी चीजें तैयार होंगी, जो कंटेंट जितना चाहिए, इफ एवरीथिंग इज देयर, then only the cell will move from one phase to the another phase. इस चेक पॉइंट से तभी इसमें पास करेगा। अगर वो सब चीज नहीं है, चेक करने के बाद प्रॉब्लम होगी, क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो ये सेल फिर से फीडबैक इसको देगा कि नो फीडबैक देगा कि नो द सेल स्टिल इट इज नॉट प्रिपेयर्ड to move towards the S phase. So just go and check what are the problems, rectify the problems, and then again came when the cell again came after the preparation, then again it is checked, and once it is checked and everything is okay, then the cell moves from one phase to the another phase. अगर ऐसा नहीं होगा तो वो सेल बैक ही चला जाएगा, और अगर रिपेयरिंग का जो है उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो रिपेयर नहीं हो सकती है, कोई चीज ऐसी हो रही है किसी भी वजह से, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो, कोई केमिकल हो, या कोई भी चीज हो जिसकी वजह से वो चीजें हो नहीं रही हो, तो सेल को फीडबैक मैकेनिज्म फिर वो दूसरी तरफ चला जाएगा, जिसको कहते हैं आप एपोप्टोसिस और द सेल प्रोग्राम सेल डेथ। या तो वो सेल मर जाएगा या तो वो रिवाइज करके आपका रिपेयर होके फिर से वापस आ जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली दिस काइंड ऑफ थिंग्स अकर एट दिस स्टेज, और ये दूसरी तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज, ये 4 स्टेज पे जो दूसरी स्टेज के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर वो सारी चीजें हो रही होंगी तभी सेल को मूव करेगा, अदरवाइज सेल
उसको रिपेयरिंग के लिए भेज देगा, या तो सेल की डेथ हो जाएगी। ये एक मोटी मोटी सी चीज हो गई जो आपको समझनी है। दीज पॉइंट्स दे वेर कॉल्ड एज चेक पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स को जो है आपको जो कहा जाता है, डिफरेंट बुक्स में भी इंक्लूडेड है, कि ये सारे के सारे चेक पॉइंट्स हैं। चेक पॉइंट्स को हम एक एक लेते हैं कि बेसिकली वहाँ होता क्या। सपोज अभी हम जब सेल मूव कर रहा है वन फेज टू द अनदर फेज, लाइक G1 से S फेज की तरफ जा रहा है, तो अभी यहाँ पर रेड सिग्नल है, और रेड सिग्नल है दैट मीन्स कि अभी आप सेल मूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीजें चेक होंगी पहले। यहाँ पर जो है बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स कहलाती हैं साइक्लिन्स। और ये साइक्लिन प्रोटीन जो यहाँ पर है साइक्लिन, एक यहाँ पर भी साइक्लिन होगी, एक यहाँ पर भी साइक्लिन होगी, एक यहाँ पर भी साइक्लिन होगी। ये प्रोटीन्स हैं जिनका नाम है साइक्लिन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनका नाम साइक्लिन क्यों है? कैन एनीवन टेल मी व्हाई द नेम हैज बीन गिवन साइक्लिन? हो सकता है आपको कहीं कोचिंग में या कहीं पढ़ाया गया हो इसके बारे में। एनी वन ऑफ यू who can share his ideas regarding the cyclins? Any one of you? It's an important or you can say that it's an interesting topic कि इनको साइक्लिन क्यों कहते हैं। यहाँ पर साइक्लिन डी है, यहाँ पर यस यस प्लीज। It's a family of proteins and involved in cell cycle. सॉरी, So it's a family of proteins involved in cell cycle. हाँ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है, मेरा ये बात सही है। फैमिली ऑफ प्रोटीन्स मीन्स कि यहाँ साइक्लिन डी है, यहाँ साइक्लिन ए होगा, यहाँ साइक्लिन बी होगा, यहाँ साइक्लिन ई होगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो एक फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है। माय क्वेश्चन इज व्हाई दे द नेम हैज बीन गिवन एज साइक्लिन। तो साइक्लिन सर वो साइक्लिकल फैशन में वेरी करते हैं, साइक्लिकल कंसंट्रेशन उनका साइक्लिकल, ओके, सेल साइकिल के दौरान। यस यस यस, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट यहाँ पर साइक्लिन डी की जरूरत है जब, तो वहां पर साइक्लिन बनेगी, और उसके बाद जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो वो साइक्लिन फिर उसका कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा, और वो डाउन ही रहेगा थ्रू आउट दी सेल साइकिल, और फिर जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब फिर से ये साइकिल बनेगी, साइक्लिन प्रोटीन बनेगी, और जब कंप्लीट हो जाएगा आपका वर्क, सेल मूव कर जाएगा वन फेज टू द अनदर फेज, तो वो उसका कंसंट्रेशन फिर डाउन हो जाएगा। So that's why it is called as the cyclins. तो यहाँ पर जो इस वाले चेक पॉइंट पे जो G1 से S फेज की तरफ जा रहा है, at this point the cyclin D proteins were formed. The concentration of the cyclin D proteins were increased, and due to increase in the cyclin D concentration, the another enzyme that is called as the CDK, or we can say that the cyclin dependent kinase. So this is the enzyme which is depend on, or it's the type of kinase enzyme which is dependent on the cyclins. साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो साइक्लिन जब बन जाएगी तब वो उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो सीडीके थ्रू आउट द सेल साइकिल वो उसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी, बट साइक्लिन की कंसंट्रेशन एट पर्टिकुलर पॉइंट ही बढ़ेगी, जहां पर साइक्लिन और सीडीके दोनों एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ द साइक्लिन और CDKs, what happens, the phosphorylation occurs. phosphorylation occurs phosphorylation से क्या होगा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे उसमें, और वी कैन से दैट द आइसोमर्स वेयर फॉर्म्ड। आइसोमर्स आप
पढ़ चुके हैं. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल. यू पीपल आर फ्रॉम द केमिस्ट्री के बैकग्राउंड and you must know very well, much more than me, what is phosphorylation and what happens when the phosphorylation occurs. तो जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो उसका कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर जो एक एक्टिव फॉर्म होगी, एक जो इनएक्टिव फॉर्म होगी. जब उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो एक्टिव फॉर्म बन जाएगी और उसके बाद में द सेल कैन मूव from one phase to the another phase. So जैसे ही जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो सेल को अलाउ कर दिया जाएगा from one phase, like from G1 phase to the S phase. जैसे ही होगा तो ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, then the cell move from one phase to the another phase. Similarly, if we take the example of the S phase to the G2 phase, here again the checkpoint it is there. यहाँ पर साइक्लिन दूसरी है, दिस इज कॉल्ड एज द साइक्लिन ई, and again cyclin E and CDK complex were formed and the phosphorylation occurs. Once the phosphorylation occurs, then everything will become clear. So that means whatsoever the information, whatsoever the work which were carried out in the previous phase, like S phase, is okay. Everything has done. The DNA synthesis has occurred. So everything is okay. Then the cell, again the green signals will be there, and the cell moves from S phase to the G2 phase. Similarly, at checkpoint from G2 to prophase, the cyclin A is there, and CDK complex were formed. And once after the formation of the cyclin A and CDK complex, again the phosphorylation occurs, and the cells were moved from one phase to the another phase. And then from metaphase to the anaphase. मेटाफेज से जब एनाफेज में जा रहे होंगे वहां पर भी एक चेक पॉइंट है, और वहां पर जो एक्ट कर रही है वहां पर साइक्लिन बी कर रही है. तो उसको जो है अगेन यहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन होगा, और फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में सेल मूव करेगा फ्रॉम मेटाफेज से एनाफेज की तरफ. यहाँ पर एक चीज आपको और इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, साइक्लिन डी की एक्टिविटी की वजह से, साइक्लिन डी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सीडीके की वजह से जब फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ये ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, सेल मूव जब कर जाएगा तो ये अगेन रेड हो जाएगा. ये ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन दिस इज द मिसिंग थिंग, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि वो फिर से वो रेड हो जाएगा ये पर्टिकुलर चेक पॉइंट, और जब हम मूव करेंगे इस पे तो ये जब ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन होने के बाद जब द सेल मूव कर जाएगा तो ये अगेन रेड हो जाएगा. Similarly with the case in this particular point and this on this particular point, वो वहां से मूव करते ही वो फिर से रेड हो जाएगा. यहाँ पर देखिए हमें सारी साइक्लिन अलग है, साइक्लिन बी है, साइक्लिन ए है, साइक्लिन ई है, साइक्लिन डी है. अब फिर वही क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये यहाँ पर लास्ट में आके ये कौन सा साइक्लिन ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, यहाँ डी दे दिया, सी का पता ही नहीं है, ई दे दिया. So ये मे बी ऑन द बेसिस के जब जो डिस्कवर हुई या जो फाइंड की गई पर्टिकुलर प्रोटीन, उसके बेसिस पे ये टाइम नाम दे दिया गया हो कि ये फर्स्ट प्रोटीन विच वर फाउंड फ्रॉम G2 टू प्रोफेज जाने के लिए, तो इसको साइक्लिन ए दे दिया. सिमिलरली साइक्लिन बी, मे बी दैट काइंड ऑफ थिंग्स मे अकर्स, और ऑन दैट बेसिस the name has been given by the different workers to the cyclin protein. यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा आपको उसमें नहीं जाना है कि साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फॉस्फोराइलेशन होगा. फॉस्फोराइलेशन से एक कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन होगा और सेल मूव करेगा फ्रॉम वन फेज टू द अनदर फेज. So this is these are the different checkpoints that we have discussed, right from the cyclin D to cyclin B, right from G1 to S phase to meta to anaphase. Now come to one of the checkpoint. If
we consider, suppose we can take the example of metaphase to the anaphase, then what actually happens? So we can understand in little bit more details. Suppose if you consider that this is the metaphase, the chromosome which were present at the metaphase stage, what happens? The metaphase cycling, or you can say that the cyclin B is there. Then suppose this is cyclin B, जो प्रोटीन है, और साइक्लिन बी के ऊपर आपका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, वो एंजाइम एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, ये दोनों और जो है कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. व्हाट हैपेंस? इनका ये सीडीके कॉम्प्लेक्स बन गया है यहाँ पर. Cyclin and CDK complex were formed. It requires the two different types of the kinase enzyme. अभी भी ये जो है एक्टिव नहीं हुआ, अभी भी वो बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में कॉम्प्लेक्स तो बन गया. अगेन यहाँ पर दो तरह के एंजाइम्स फिर से एक्ट करेंगे, and that is the V and the CAC. इनके दो नाम हैं, जो V यहाँ पर और CAC इस एंड पे, मतलब दोनों अलग अलग डिफरेंट एंड्स हैं आपके साइक्लिन के, वहां पर ये एक्ट करेंगे. V1 और CAC बोथ आर कैपेबल ऑफ फॉस्फोराइलेशन. अब दोनों जो हैं वो कैपेबल हैं, दोनों एंजाइम्स फॉस्फोराइलेशन के लिए कैपेबल हैं, फॉस्फोराइलेशन कर सकते हैं. देन व्हाट हैपेंस? फॉस्फोराइलेशन अकर्स ऑन बोथ द साइड्स, both the ends, V ends and the CAC end में दोनों जो है तरफ phosphorylation हो गया. These are the active phosphatase enzymes, CAC and V. Then this is the inhibitory phosphatase enzyme, V and CAC. Then what happened? Still it is not active, क्योंकि एक तरफ inhibitory लगा हुआ है, एक तरफ active लगा हुआ है, तो इस वजह से ये अभी भी inhibitory है, एक्टिव नहीं है. Then what happens? Dephosphorylation of the V1 site. ये जो V1 site है, यहाँ इसका dephosphorylation होगा, is necessary to become cyclin and CDK complex active. इसको एक्टिव बनाने के लिए, ये तो बन गया, उसके बाद दो फॉस्फेटेज एंजाइम्स V and CAC ने एक्ट किया और उसको फॉस्फोराइलेशन कर दिया. फॉस्फोराइलेशन करने के बाद में वो स्टिल वो जो एक्टिव नहीं है, क्योंकि एक इनहिबिटरी फेस अभी भी लगा हुआ है. इस इनहिबिटरी फेस के एक्टिविटी को कम करने के लिए डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ V1 साइट इज इम्पॉर्टेंट. उसको, ये वाली साइट को आपको इनहिबिट करना पड़ेगा, तभी जाके वो एक्टिव होगा. देन व्हाट हैपेंस? CDC25, this is the 41st phosphatase enzyme, cleaves the phosphate group from the protein from the V site. ये जो phosphorylation हुआ है, इसको हटाने के लिए CDC25, which is a phosphatase enzyme, वो उसके phosphate group को वहां से हटा देगा V site से. How it looks like? ये इस तरीके का आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है ये एक फॉस्फेट रह गया, यहाँ का V साइड का, V1 साइड का फॉस्फेट वो खत्म हो गया. Then what happens? It becomes active. Now the action of the enzyme separase on the protein like cohesin and condensin started, which helps in the separation of the sister chromatids. ये जब मैं आपको माइटोसिस पढ़ा रहा था, तभी मैंने आपको ये बताया था कि कोहेसिन एंड कंडेंसिन जो दो तरह की प्रोटीन्स हैं, जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़े होती हैं, और उनको जोड़ने के लिए एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज द सेपरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है. वो उसको डिसॉल्व कर देता है इन प्रोटीन्स को, कोहेसिन एंड कंडेंसिन को. जब वो डिसॉल्व हो जाएंगी तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे. तो ये भी इतना आसान दिख नहीं रहा. इतने पूरे प्रोसेस के बाद जब एक सीडीके साइक्लिन एंड सीडीके कॉम्प्लेक्स एक्टिव हुआ, जब जाके कि उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप जो वी साइड का था, जो इनहिबिटिव फॉस्फेटेज एंजाइम से आया था, वो जब तक उसको इनएक्टिव नहीं किया गया, और उसको इनएक्टिव करने के लिए एक फॉस्फेटेज एंजाइम लगाया गया, and that phosphatase enzyme is CDC25.
जब ये एक्शन एंजाइम का हो जाएगा देन द एनाफेज स्टार्टेड टू वर्क। तो दोनों क्रोमोसोम्स का मूवमेंट, जब दोनों क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे और द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते ही इंडिविजुअल क्रोमोसोम कहलाने लगेंगे एंड देन दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल। जैसे ही ये वाला एक्टिव होगा, होने से एंजाइम जो है वो एक्ट करने लगेंगे कोहेसिन एंड कंडेंसिन और उसको डिसॉल्व करके दोनों सेपरेट कर देंगे। जब वो सेपरेट कर देंगे anaphase started and then the cell were started moving towards their respective poles। जब ये हो जाएगा साइक्लिन जो प्रेजेंट थी, साइक्लिन बी सपोज, वो डिसॉल्व हो जाएगी और वो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो जितना के रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उससे वो कम हो जाएगा। बट द सीडीके जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, राइट? इफ यू सी राइट फ्रॉम दिस वन जैसा था वैसा ही है, but here the concentration of the cyclin was comparatively very high and then after the whole process it becomes very low, so concentration बिल्कुल कम हो गया। So this is just an example to understand you people what are the different things which can be happen at particular checkpoint। ये जो हमें इतना इजी दिख रहा है सेल डिवीजन का प्रोसेस, वो इतना इजी नहीं है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और इसमें बहुत सारा आपको बहुत सारी बुक्स में ये दे रखा होगा इस तरह का कि एक सीडीके एक साइक्लिन है, दोनों जो है आपके जब ज्वाइन करेंगे एंड दे फॉर्म द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स फॉस्फोराइलेटेड और phosphate donating proteins kinases were formed, इसका phosphorylation होगा, P हो गया activated cytokinin complex and then this due to the addition of this phosphate the target protein जो लगी हुई है वो जो है उसके ऊपर एक्ट होगा ड्यू टू द कन्फॉर्मेशनल चेंजेस, वो मैंने आपको भी बताया। और ये एक्टिव प्रोटीन्स जो है एक्टिवेटेड प्रोटीन एडवांसेस द सेल साइकिल और उसके बाद ये टारगेट प्रोटीन अलग हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स के बाद, फिर ये कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा, साइक्लिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी बट सीडीके रिमेन्स द सेम। व्हाई दे वर कॉल्ड एज अ साइक्लिन, वो मैंने आपको अभी बताया था कि जीवन फेज पे साइक्लिन डी की जरूरत पड़ रही है, तो साइक्लिन डी जो है वो कंसंट्रेशन जीवन फेज पर बहुत ज्यादा हो गया और फिर जो है उसका कंसंट्रेशन कम हो गया। सिमिलरली दूसरे फेज में आते आते आपको दूसरी प्रोटीन्स नहीं दिखेंगी। इन केस ऑफ द G1-S में साइक्लिन ई की जरूरत होती है, तो साइक्लिन ई का कंसंट्रेशन पीक पर गया और फिर वो डाउन हो गया। साइक्लिन ए राइट फ्रॉम S to G2 फेज वो भी उसका कंसंट्रेशन हाई गया और ये कम हो गया। सिमिलरली इन केस ऑफ द M फेज साइक्लिन, तो साइक्लिन बी ये भी आपका कंसंट्रेशन राइट फ्रॉम मेटाफेज से लेके मेटाफेज G2 के लास्ट में जाके और मेटाफेज पे जाके आपको कंसंट्रेशन हाई मिलेगी और फिर जब रिएक्शन हो जाएगी द सेल मूव कर जाएगा वन फेज टू द अनदर फेज, तो उसकी कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। तो ये बार बार अच्छा जब दूसरा सेल डिवीजन होगा तो अगेन की कंसंट्रेशन फिर बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा। तो ये बनना और टूटना और वी कैन से द कंसंट्रेशन बढ़ना और कम होना की वजह से जो बार बार एक साइकिल हो रही है कि कम होना बढ़ना कम होना बढ़ना, ये प्रोटीन्स को साइक्लिन प्रोटीन्स कहा जाता है। सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर, यू मस्ट बी वेरी thoughtful about this, that why the name has been given the cyclin and why the name has been given cyclin D, E, A or B whatsoever it is there। Now there will be a negative regulation, अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पॉजिटिव रेगुलेशन एक्टिव मॉलिक्यूल्स कैन कॉज द साइकिल प्रोसेस, नेगेटिव रेगुलेट्स द हॉल्ट रेगुलेटर्स हॉल्ट द सेल साइकिल। यहाँ पर सेल जो है सेल साइकिल को रोकना होगा, यहाँ पर सेल साइकिल रुकेगी।
Negative regulatory molecules are retinoblastoma protein, RB, P53, and P21. There are different protein molecules और जो फिर ये एक्टिव हो जाएंगे P53, P21 और बहुत सारी चीजें ये आपने मे बी आपने क्लास 12 में पढ़ी हुई हो. Then there are the group of the tumor suppressor proteins common in many cells. And all three of these regulatory proteins were discovered to be managed or non-functional in cells that had begun to replicate uncontrollably, controllably become cancerous. ये वाली प्रोटीन्स जो सप्रेस करती रहती हैं सेल्स को डिवाइड होने से, अगर यही इनका ही रेगुलेटरी प्रोटीन डिस्कवर हो जाए या डैमेज हो जाए, सॉरी डैमेज हो जाए या किसी वजह से नॉन फंक्शनल हो जाए, तो फिर replication or the multiplication of cell become uncontrolled, and that is also called as the cancer. In each case, the main causes of the unchecked process through the cell cycle was faulty copies of the regulatory proteins. अब इसमें वही है कि cell cycle पे जब आप check point पर वो faulty copies अगर वो नहीं check हुई, so that kind of things may occur. The negative regulatory protein act primarily at the G1 phase, and then P53 is multifunctional protein that has a major impact on the commitment of the cell to the division, as it acts when there is a damage DNA in cells that are undergoing in the preparatory process during the G1 phase. If the damaged DNA is detected, P53 halt the cell cycle and assign the enzyme to repair the DNA. So not only in that, P53 is also helpful in detection of the damaged DNA, and which can help in the reparation, which can also help in the assignment of the different enzymes to repair the DNA. Then if the DNA cannot be repaired, P53 can trigger the apoptosis. अगर नहीं रिपेयर हो पा रहा है, प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, तो वो apoptosis की तरफ चला जाएगा, जिसको आप कहते हैं cell suicide or the programmed cell death. This can be happen to prevent the duplication of the damaged DNA. और जाहिर सी बात है कि अगर वो डैमेज डीएनए चला जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम करेगा. पहली बात तो वो इंडिविजुअल को ही नहीं जिंदा रहने देगा अगर कुछ ऐसी जगह पे है, तो अगर वो किसी भी तरीके से साइकिल में फर्दर चला भी जाता है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा. As the 53 level rises, the production of the P21 is triggered. P21 enforce the halt in the cycle dedicated by the P53 by binding to the inhibitory activity of the CDK and cyclin complexes. CDK और cyclin complex का तो multiplication में रोल है, और P53 जो है और P21 उसको halt करने में जो रोल प्ले करते हैं, बल्कि साइक्लिन और सीडीके कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को भी डाउन करते हैं. As a cell is exposed to more stress, higher level of P53 and P51 accumulates, making it less likely that the cell will move into the S phase. मैंने वही कहा कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब ये सारी चीजें हो रही होंगी. जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स कैन बी फॉर्म which can help in the non-movement of the cell from one phase to another phase, or we can say that it can also help in the halting of the cells to the division, or they can also be helpful in the in stopping the cell division once the uh, once the size of the particular organs were made. Then RB exerts its regulatory influence on the other positive regulator proteins. Chiefly, RB monitors the cell size. In the active dephosphorylated state, RB binds to the protein that is called as the transcription factors, most commonly E2F. The transcription factors जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें much details में we will discuss about that. Transcription factors turn on the specific gene, allowing the production of the protein, and guarded by that gene. When RB is bound E2F, the production of the proteins necessary for G1 to S transition is blocked.
Yeah, different kind of things can be happens when the cell is going to stop. As the cell increases in size, RB slowly phosphorylated until it becomes inactivated. RB releases E2F, which can now turn on the gene that produces the transition proteins, and this particular block is removed. For the cell to move past each of the checkpoints, all the positive regulators must be turned on and all the negative regulator must be turned off. जब सेल में सारी चीजें आपकी नॉर्मल हो गई, सारी चीजें whatsoever the information is required for the next level if it is completed, तो जितने भी आपके जो नेगेटिव रेगुलेटर्स थे वो टर्न ऑफ हो जाएंगे और पॉजिटिव रेगुलेटर्स टर्न ऑन हो जाएंगे. द सेल कैन मूव फ्रॉम वन फेज टू द अनदर फेज और द सेल कैन प्रिपेयर इटसेल्फ फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन फेज टू द अनदर फेज. These are the things which you can understand like that. E2F and RB, this is the DNA. The cell growth is there. ATP, we have found the ATP of energy were used, and then the cell growth triggers the phosphorylation of the RB. Phosphorylated RB releases E2F, which bind to the DNA and turns the gene expression, thus advancing the cell cycle. So we can conclude from the checkpoint that the checkpoints represent at each phase of the cell during the cell division, from the movement of the cell from one phase to another phase, from the checkpoint, certain proteins required, that is called as the cyclins. For each checkpoint, different cyclins were required. The concentration of the cyclins increases and decreases depending on the phase of the cell division. The concentration of the kinase remains constant. That I have also discussed all these points during this whole presentation. The negative regulator molecules monitor cellular condition and can halt the cycle until the specific requirements were made. So this is all about the cell cycle regulation. Now the time is over. Now I can stop here because you have to join the another class. Inshallah, on Thursday we will discuss about the cell membrane or and also the other important topics. I'm a little bit hurry in completion of your course because still we were not able to complete one unit, and I don't know about the others, not only in botany but also in other courses. Maybe all the classes have been happened or all the classes covered their syllabus. So please bear with me and so that I can help you people in one or the other ways. Thank you very much. On Thursday we will meet. Thank you, sir.